Is there anything that you would want to say? I have lost many times. I have lost in many interviews. In college also बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज क्रैक नहीं किए. ऐसा भी होता था कि थर्ड और फोर्थ राउंड के बाद रह जाता था, और कईयों में ऐसा था कि ओए भी दिया, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक्सेप्ट हो गया, बट आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. एवरीवन हैव देयर ओन टाइम. Success is a continuum and not an event. That was the COVID time. I pursued my course with Programming Pathshala. With that, when I was enough capable to solve good problems, I also started lead code problems. वहाँ से अच्छी आदत भी चालू हो गई कि रोज एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करो. That also led me to conquer many interviews. Post that, I went to TCS. Then I went to Amazon. The rescue for me was Programming Pathshala course. TCS से Amazon में स्विच किया तो आई थिंक वो एक बड़ा स्विच रहा होगा. और TCS से स्विच करना, सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्विच करना, ये बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है कि भाई अभी हम लेट से 3-7-5 LPA पर हैं और वहाँ से हम 25-30 LPA वाले रेंज में जा रहे हैं. तो what are the skills that are needed to make that switch and how were you able to do it? Hi everyone, welcome to this episode of our podcast. We have Manav with us, who is a senior software engineer at Nelson, has worked at Amazon earlier, and has a lot of interesting stories which will be relatable for you in your career and throughout the 4 years of your engineering. एक बार सबके लिए, would you like to introduce yourself and tell us what do you do right now? Sure. So I have done my schooling from Oxford Senior Secondary School in Delhi, and then I went to Punjab in LPU. Post that, I went to TCS, and in TCS I started preparation for DSA because that was the COVID time, and I pursued my course with Programming Pathshala. With that, when I was enough capable to solve good problems, I started solving code forces problems, code chef problems, and I started building good ratings in them. Plus, I also started lead code problems because that were already in the homework. So with that also, the routine to solve daily problems in lead code also began. So वहाँ से अच्छी आदत भी चालू हो गई कि रोज़ एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करो. Then I went to Amazon. In Amazon, like I spent 3 years there. उधर भी मतलब बहुत सारी learnings हैं because that was my first product based company, and उधर like बहुत ऐसा था कि we have to be good at not only problem solving but also at software engineering level. बिकॉज उसमें क्या था कि डीएसए तो नहीं है उधर. आपका मेन कैसे आप स्केलेबल चीज़ को पहचान पाते हो कि हाँ दिस इज़ अ थिंग विच वी नीड टू वर्क एट स्केल. एंड हाउ टू वर्क एट स्केल वॉज द प्रॉब्लम, दैट हाउ वी कैन वर्क एट स्केल. तो उधर द रेस्क्यू फॉर मी वॉज LLD course, low level design and concurrency course in for programming Pathshala. I took that after 2 years when I was in Amazon. 2 साल के बाद मैंने वो चालू किया कोर्स बिकॉज मुझे फिर ज़रूरत लगी कि नहीं, अगर लेवल अप करना है, बिकॉज SDE 1 से SDE 2 जाना है इज़ इक्वल टू यू हैव टू टेक मैनी ऑनरशिप. ठीक है. उधर भी मुझे मेंटरशिप की नीड पड़ी. उधर भी कुछ गलतियाँ हुई मुझसे. ठीक है. बिकॉज अगेन लैक ऑफ ग्रेट मेंटरशिप. ठीक है. मुझे मेंटर्स वहाँ भी मिले जो अच्छे थे, बट वो थोड़ा लेट मिले. ठीक है. तो मैंने और वहाँ पे ह्यूज कोड बेसिस होते हैं, राइट. एंड आप यू हैव टू वर्क ऑन दैट यूज के कोड बेसिस. आपने अपना डिज़ाइन बनाना होता है. ठीक है. जब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला तो वो भी कैसे बनाओगे. you should be knowing about the DSA not DSA, sorry, design patterns, low level design patterns. So उसके लिए the rescue for me was again Programming Pathshala course, where I learned not only to apply that design pattern but where to apply that, what is the good trade-off to take.
while applying any design pattern. And that also led me to conquer many interviews. For example, I cracked interview from Oracle. I cracked interview from Nelson, and there were other छोटे छोटे भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज थे जिनके मैंने इंटरव्यू क्रैक किए थे. ये बड़ी दो कंपनीज हैं, जैसे ओरेकल हो गया और नेल्सन हो गया. TCS से अमेजोन में स्विच किया तो आई थिंक वो एक बड़ा स्विच रहा होगा. और TCS से स्विच करना, सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्विच करना, ये बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम होता है ड्रीम. कि भाई अभी हम लेट्स से 3-7-5 LPA पर हैं और वहाँ से हम 25-30 LPA वाले रेंज में जा रहे हैं. तो what are the skills that are needed to make that switch and how were you able to do it? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किल इज आपको DSA आना चाहिए. वो तो आना चाहिए, लाइक वो तो मैंडेटरी है. यू शुड बी गुड एट इट. अब DSA में भी दो तरीके के लोग होते हैं जो कि शीट सॉल्व करते हैं एंड वो तो सोचते हैं फिर हम प्रिपेयर हो गए क्योंकि उन्होंने कुछ हर एक पैटर्न के 4-4 क्वेश्चन लगा लिए हैं. बट ऑनेस्टली Right. स्पीकिंग इससे कुछ नहीं होता. हाँ. ठीक है, आप फिर आपका लक बेस्ड बन जाता है एग्ज़ाम. मतलब कि जो आपका इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर कोई OA भी है तो आपका लक बेस्ड हो जाता है. उसमें क्या है कि आपका अगर लक लग गया कि जो शीट में था वो क्वेश्चन आ गया और सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो फिर हो गया. हाँ. अदरवाइज नहीं हो पाएगा. ठीक है, आपको वहाँ पे पैटर्न भी सीखने हैं, बट पैटर्न रिकग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है. क्योंकि उसमें से ही आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब कि you know how to divide, you know how to read the problem statement, you know how to understand the question, you know how to divide the question into sub problems, and then आप समझते हो कि इस सब प्रॉब्लम को ये वाला पैटर्न सॉल्व कर पाएगा, इस सब प्रॉब्लम को ओके अच्छा इसके लिए तो ये पैटर्न था, ये सॉल्व कर पाएगा. सो ऐसा यू सी ओके आई सी मोनोटोनिसिटी अक्रॉस द स्पेस, देन यू नो ओके इट्स बाइनरी सर्च. राइट. ऐसे है. सो दैट इज द स्किल विच इज रिक्वायर्ड. तो वन थिंग इज DSA इज रिक्वायर्ड. उसके अलावा और आजकल क्या ज़रूरत पड़ती है? लेट्स से somebody has to switch because a lot of people in audience are preparing for software engineering roles. So what do you think, what would you recommend them to prepare in today's time if they have to crack a company like Amazon? तो DSA प्रिपेयर करना है, उसके अलावा और क्या क्या उसके करना अलावा चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए आपको LLD एंड कॉन्करेंसी. बिकॉज हमारे टाइम पे क्या था, इट वाज द टाइम ऑफ 2020-2021. सो ये तो आज से 5-6 साल पुरानी बात हो गई. ठीक है, 2022 का टाइम, मैंने 2022 में अमेजोन किया था. अब बहुत चेंज हो चुका है. नाउ आई सी कंपनीज आस्किंग फॉर लो लेवल डिज़ाइन एंड कॉन्करेंसी. सो अब अब ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि design some feature of the Uber, design some feature of some application which you use on daily basis. ठीक है, एंड डिज़ाइन का मतलब कि वो दे एक्सपेक्ट कि आप लो लेवल कोड लिखोगे, आप कोड लिख के दिखाओगे, आप दिखाओगे कि आप कौन सा आपने आपका थिंकिंग आप कैसे सोच पा रहे हैं. एक बार ऑडियंस के लिए बता सकते हो शायद कि लो लेवल डिज़ाइन हाई लेवल डिज़ाइन में अंतर क्या है? अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल बना रहे हैं एक वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन. ठीक है, नाउ वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन में आप हाई लेवल कंपोनेंट सोचेंगे पहले. ठीक है, कि अच्छा मैं अपने यूज़र के लिए फ्रंट एंड बनाऊंगा, उसको मैं अलग सर्विस में रखूँगा, मैं अपने यूज़र्स के लिए बैक एंड बनाऊंगा और उसको कनेक्ट में कौन कौन से पार्ट से करूँगा. ठीक है, आपके कौन कौन से सब्सक्राइबर्स हैं. ठीक है, आपके कुछ सब्सक्राइबर्स आपके APIs एक्सटर्नल APIs हो सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं ऊबर लेवल पे बताऊँ तो दिस इज़ नोन एज हाई लेवल थिंकिंग. दैट आप हाई लेवल पे सोच पा रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे. दैट इज सिस्टम डिज़ाइन. दैट इज़ होल सिस्टम डिज़ाइन. आप हाई लेवल पे डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है, नाउ जब आपने सोच लिया कि these are the components which will be interacting with my application and this is how the front end and back end will be interacting with each other. ठीक है, तो उसमें फिर आपको अब आपने अपनी मान लो कि एक सर्विस बनानी है. आपने सोच लिया कि मैं अच्छा ठीक है मैं बैक एंड के लिए सर्विस ही अलग लूँगा. अब आप उस बैक एंड की सर्विस का कोड कैसे लिखेंगे, राइट? आप मल्टीपल जो आपके पब्लिशर्स हैं, वेदर पब्लिशर्स हैं, आप उनसे आपके मान लो कि 10 पब्लिशर्स हैं. ठीक है,
आप उनका सब्सक्राइबर्स कैसे लिखोगे, ठीक है। मान लो कि आपके कोई ऐसा है कि एक चीज़ को बताने के लिए 4 आपके सर्विसेज हैं, ठीक है, एंड यू जस्ट वांट कि मैं कभी कोई सर्विस यूज़ करूं, कभी कोई सर्विस यूज़ करूं, ठीक है। आप उसके बेसिस पे कैसे आप एक्सटेंसिव कोड कैसे बनाओगे, राइट। अब आजकल जैसे एआई का है से, कई बार क्या होता है कि हमको कोड के अंदर बस एक पॉइंट रखना होता है जहाँ पे मैं बस स्ट्रिंग चेंज करूँ एंड पूरा ही एआई का, जहाँ से मैं फॉर एग्जांपल वर्टेक्स एआई कॉल कर रहा हूँ, अब मैं बेडरॉक को कॉल कर पाऊँ एंड जस्ट आई वांट टू चेंज द स्ट्रिंग, ठीक है। मैं एक बस क्लास लिख लिया, मैंने रैपर लिख लिया, बाकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सब सेम है, ठीक है। मैंने रैपर लिख दिया एंड वेयर एवर आई एम यूजिंग दैट, मुझे वो चीज़ चेंज नहीं करनी, वो कोड चेंज नहीं करना, बस मुझे वहाँ पे एक स्टैटिक स्ट्रिंग चेंज करनी है। सो उतना एक्सटेंसिव कोड कैसे बनाए, दिस इज़ वेयर एलएलडी comes into the picture, where you create a extensive code, you एक्सटेंसिबल कोड. extensible code, you code for extension basically। और यही कोर्स में भी है आपके, कोड फॉर एक्सटेंशन, फिर उसके बाद आपका कोर्स चालू होता है, राइट। सो हाँ, तो आई थिंक आपने बोला डीएसए पढ़ना पड़ेगा, लो लेवल डिज़ाइन पढ़ना पड़ेगा और सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना पड़ेगा आज के टाइम में, कॉन्करेंसी। और कॉन्करेंसी पढ़ना होगा। अभी से अभी जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर 2030 में जो लोग ग्रेजुएट हो रहे होंगे, जैसे हमने अभी जेनेसिस स्कूल ऑफ एआई शुरू किया है, उसमें 2026 में बच्चे एडमिशन ले रहे होंगे, 2030 में ग्रेजुएट हो रहे होंगे. हाउ हैज़ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब हैज़ चेंज्ड ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर एलएलएम्स? तो वो एक बार थोड़ा बताइए कि वो कैसे चेंज हुआ है, उसमें आप रोज़ अभी कोड करते हो या फिर एलएलएम्स कोड करते हैं, अभी कैसे रहता है, और आगे क्या लगता है कि आगे कैसे होगा? दैट्स गुड। सो अभी क्या है कि अगेन मैं, सो हमारे पास टूल्स होते हैं, राइट। और हर एक ऑफिस अब टूल्स रखने लग गए हैं, जैसे अमेजोन क्यू हो गया, कर्सर हो गया, कीरो हो गया, दीज आर दी लाइक बेसिक टूल्स नाउ। मतलब ये हैं एक्चुअली आईडीज़ हैं एंड उसके अंदर उनका एक एक्सटेंशन है जिसमें आप यू कैन चूज़ दी एआई मॉडल एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है कि यू हैव टू वेज टू डू योर वर्क। फर्स्ट वे इज़, एंड दैट इज़ नेव वे। आप क्या करते हैं कि चूज़ करते हैं मॉडल, ठीक है, और मस्त डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल दी, जो आपको आपके बॉस ने बोला है कि ये चीज़ बना दो, ठीक है। आपके जो प्रोडक्ट ने बोला आप ये चीज़ बना दो, आपने क्या किया कि डॉक्यूमेंट उठाया, कॉपी पेस्ट किया, बना दो, ठीक है। वो बना भी देगा, बट इफ़ यू डोंट नो द इन्स एंड आउट्स, तो फिर वो ऐसा बनाएगा कि आपको फिर कभी समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आप नहीं अब उसको गाइड कर रहे, वो आपको अब गाइड करना चालू करेगा एंड फिर एक लूप चालू होगा, debugging debugging debugging, you will be finding the code, there will be some bugs जो कि होते ही हैं, ठीक है। एंड आप फिर उसको, मतलब आपका फिर एक साइकिल ही चालू हो जाएगा कि आप उसको बोलोगे फिक्स दिस, वो फिक्स करेगा, फिर से नहीं चला, फिक्स दिस, ठीक है ना, ये अभी भी नहीं चला, आप बस एरर का कोड देते रह जाओगे एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। हाउ टू यूज़ इट स्मार्टली, मुझे पता है कि मैं पहले क्या करूँगा कि उससे पूछूंगा दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर माई सॉल्यूशंस, राइट द ट्रेड ऑफ इट। मेरे हर एक सॉल्यूशन का ट्रेड ऑफ लिखो, प्रोज एंड कॉन्स लिख लो, ठीक है। उसमें मेरा एआई बहुत अच्छे से हेल्प कर लेगा। मैंने अपना पहले दिमाग लगाया कि फॉर एग्जांपल अभी मुझे प्रोडक्ट से रिक्वायरमेंट मिली है एंड मैं उससे बोलूँगा भाई ऐसा कर, मेरा ये सॉल्यूशंस है, मैं अभी हाई लेवल डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये सर्विस इससे कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। हमको फॉर एग्जांपल मुझे एसिंक्रोनसली करना है काम, ठीक है, 2 सर्विसेज को एसिंक्रोनसली कनेक्ट कराना है। अब मुझे बीच में एसक्यूएस लगाना है एंड देन उसके साथ वो लगाना है, क्रोन लगा के करना है, लैम्डा लगा के करना है कि मैं, अच्छा मेरा ट्रैफिक कम है अभी, ठीक है, एंड मैं क्या कर सकता हूँ कि और रिट्राइज जो है मेरे मैनुअल हैं, ठीक है। मुझे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो मेरे रिट्राई होंगे वो ऐसे होंगे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुद ही रिट्राई हो जाए, काइंड ऑफ फेलियर रेजिलियंस, ठीक है। अगर रिट्राई मैनुअल हो सकते हैं तो मैं डायरेक्ट सर्विस कॉल भी करके एसिंक्रोनसली उसको चला के कॉल बैक दे सकता हूँ अपने मेन एप्लीकेशन में, ठीक है। सो अब मैंने ये 2 अप्रोचेस सोची, ठीक है। अब मैं एआई को बोलूँगा कि राइट अ गुड डॉक्यूमेंटेशन, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट कर दो,
ठीक है, फिर मैं उसको बोलूँगा कि चलो ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट अप्रोच? ठीक है, ओके, मैं मैप्ड, बिकॉज जो मैं सोच रहा हूँ कि अप्रोच वन की रिट्राई वगैरह वो खुद मैनुअली करेंगे, तो एपीआई मैं ऐसे करता हूँ, एक सिस्टम बनाता हूँ जिसमें वो एपीआई कॉल करे और जब उसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर हो जाए तो कॉल बैक से भेज दे। ठीक है, ठीक है, मैंने उसको मना लिया कि ठीक है मैं ये वाला अप्रोच यूज़ करूँगा, बिकॉज यू ऑल्सो एग्री ऑन दिस, काइंड ऑफ आई एम कम्युनिकेटिंग विद एआई। ठीक है, और टोकन से उसमें कम यूज़ होते हैं क्योंकि मैं कोई बेसिक सा मॉडल यूज़ करता हूँ उसमें भी। ठीक है, चलो हो गया, हमारा डन हो गया कि ये वाला अप्रोच, अब उसके पास कॉन्टेक्स्ट शेयर हो गया कि अब ये इंसान इस अप्रोच से चलेगा। अब मैं लो लेवल डिज़ाइन पे आऊँगा। ठीक है, अब लो लेवल डिज़ाइन पे कैसे? ठीक है, आई नीड टू यूज़ स्ट्रैटेजी ओवर हेयर, आई नीड टू यूज़। अब क्या होगा कि नाउ ही यू नो कि इसको हाई लेवल डिज़ाइन कौन सा पसंद है, इसको लो लेवल डिज़ाइन कौन सा पसंद है। ठीक है, हमने चूज़ किया हुआ है कि कौन से सॉफ्टवेयर पे लिखना है, नॉट सॉफ्टवेयर एक्चुअली, कौन से कोड, कौन से लैंग्वेज में लिखना है। जैसे हमको मान लो गो पे लिखना है, या फिर नेस्ट में लिखना है, या फिर आपका पाइथन में लिखना है। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में नहीं है कि आई डोंट नो द सिंटेक्स, गो मेरे लिए न्यू है। ठीक है, आई नो ओनली जावा। ठीक है, गो मेरे लिए न्यू है, मैं थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा, मैं उसको बोलूँगा कि भाई स्टार्ट राइटिंग द कोड, फिर मैं उसको रिव्यू करूँगा कि गोस कोड को रिव्यू किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस साइकिल में आपके बग्स नहीं आते, राइट। कोड आपके हाथ में रहता है, यू नो द डिज़ाइन, यू नो द इन्स एंड आउट्स। मैं उसको बोलूँगा कि अच्छा लॉगर ये चूज़ करो, लॉग मेरे को लॉगिंग मैकेनिज्म कैसा चाहिए, मेरे को एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म कैसा चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म मेरा कैसा होना चाहिए। लाइक ठीक है, आई डोंट वांट कि मैं हर एक एक्सेप्शन को हैंडल करूँ। ईजी वे यही है कि ऐसा करो, एक क्लास बनाओ, काइंड ऑफ एक्सेप्शन क्लास बनाओ अपना कस्टम सा, और जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो हो तो उस क्लास के अंदर रैप हो जाए एक्सेप्शन विद इट्स मैसेज। फिर हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर बनाएंगे, और वो कोई भी एक्सेप्शन आएगा हम कैच करके अपना कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, उस फिल्टर में वो एक्सेप्शन हैंडल होगा। अब इससे ईजी क्या हुआ, कोड तो उसने कर लिया जल्दी जल्दी, वरना अगर मुझे मैनुअली कोड करना होता तो एक दिन लग जाता, उसने 5 मिनट्स में कर दिया। मैंने क्या किया, 10 मिनट्स लगा के उसको रिव्यू किया कोड, कुछ इश्यूज थे उसको सॉल्व करा लिए। ठीक है, मेरा 15 मिनट्स में पूरा कोड रेडी है, पूरा बॉयलर प्लेट रेडी है। अब मैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, लॉगर मेरा ऐसे यूज़ होगा और मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसे यूज़ होगी। आई जस्ट नीड टू राइट दी कंट्रोलर्स, APIs, दैट इज़ इट। आई जस्ट नीड टू डिज़ाइन फीचर नाउ। फीचर में अब कैसे, मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं इधर इधर मैं अपना जेन AI का वो यूज़ करूँगा, रैपर यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजी पैटर्न बना के दे दो। ठीक है, एंड उसके लिए आप कुछ मत करो, ही न्यू कि स्ट्रैटेजी पैटर्न क्या है, बस वो कोड मुझे लिख के दे देगा, वो एक इंटरफेस बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा। ठीक है, 2 स्ट्रैटेजीज बना देगा, एंड आई कैन ईजिली प्लग एंड प्ले, बस मुझे रिव्यू करना है कोड को। तो दिस इज़ हाउ करंट सेटअप इज़। आगे कैसा होगा, आगे भी मेरे ख्याल से LLMs और एडवांस हो जाएंगे, बट व्हाट आई सी इज़ कि आगे ज़्यादातर लोग अब ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोग अभी क्या है कि ना जल्दी जल्दी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर ली LLM से, जो कि जिसमें शायद से LLM ना भी लगता हो, मैं ज़रूरी नहीं था उसमें LLM लगना, बट आगे आई सी स्प्रिंट्स ऐसी बन रही होंगी या फिर टास्क ऐसे बन रहे होंगे कि ऑप्टिमाइज द यूज केस ऑफ LLM ओवर हियर। राइट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए होगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। टोकन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हाँ, होगा, सो क्योंकि अभी तो कॉस्ट इज सब्सिडाइज्ड। हाँ अभी सब्सिडाइज है, आगे आगे पता नहीं ये लोग कॉस्ट को कैसे, बट आई सी कि ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर तो बात चलेगी, और उसमें रियल इंजीनियर्स की नीड होगी, बिकॉज यू डोंट नो कि अगर आप अच्छे इंजीनियर नहीं हो देन यू डोंट नो कि तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन वी से कि AI इज eating software engineering or software engineers are actually on the verge of or is software engineering dead, you'll hear it so many times, but I think you are right here because lot of cost is subsidized at this point of time for LLMs, and it will have to be optimized later, and that will need real engineers, रियल इंजीनियर्स। that will need good engineering skills एग्जैक्टली, and good agentic AI skills, करेक्ट करेक्ट। and then ability to
do good problem solving on the top of it. एग्जैक्टली, गुड, करेक्ट करेक्ट, दैट पार्ट। उससे मुझे एक बात याद आई। पहले के टाइम पे क्या था कि ना, लोग हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल फेशियल रिकग्निशन हो गया, ठीक है, उसके लिए अपना एमएल का मॉडल ट्रेन करते थे एंड उसको यूज़ करते थे। अब एलएलएम कर देता वो चीज़, ईजिली कर देता है। आगे क्या होगा कि हम वापस से उस पॉइंट पे जा रहे होंगे कि जिसमें अच्छा ठीक है, हमको तो यार एलएलएम का यूसेज इसमें हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हम एक एमएल के मॉडल को छोटा सा ट्रेन कर देते हैं इस छोटे से यूज़ केस के लिए। क्योंकि आपका अगर मान लो कि किसी इमेज को रिकग्नाइज करने के लिए आपके टोकन्स आई गेस अच्छे खासे लगेंगे। आप कोई वीडियो देते हो, वीडियो डायरेक्ट दे देते हो मान लो एलएलएम को, आपका वो बहुत टोकन नीड करता है। तो जैसे आपने बोला है वैसा ही होगा कि हम फिर उसके बाद हम वापस से उस पॉइंट पे आएंगे कि ओके, यहाँ पे हमको ऑप्टिमाइज़ करना है, यहाँ पे ऐसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, इस छोटे से एमएल मॉडल को ट्रेन कर दो। तो फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा ऐसा लग रहा है इससे कि यू नो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रियली वेल, यू नो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, एग्जैक्टली। you know data structures algorithms, you know system design, low level design, and on the top of it you also know how to train small models. हाँ। You also know how to optimize uh, on AI uses. You also know a bit of agentic AI uh, skills, करेक्ट। and then that will make a complete package, and that's like a lot of stuff to study for a software engineer, but I think it's worth it. बिकॉज अभी क्या है कि अभी एक कॉमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एमएल नहीं जानता, वो ये सब भी कर पा रहा है कि मान लो कि कोई स्मॉल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एंड जैसे मैंने अभी इमेज रिकग्निशन का ही बोला, वो उसको नहीं आता कि योलो, उसको नहीं आता कि आर टी डी ई टी आर, आर एफ टी ई टी आर, उसको नहीं पता ये सब। उसको बस इतना पता है, उसको पता भी है तो फिर बहुत मतलब Superficial level डीप, पे. हाँ सुपरफिशियल लेवल पे, डीपली नहीं पता उसको। तो वो क्या करता है कि अभी डायरेक्ट कॉल करेगा, उसको इमेज देगा, कॉल करेगा एंड काम तो बन गया अभी। बट जब ऑप्टिमाइजेशन में बात आएगी ना, फिर उसको ये सब पढ़ना पड़ेगा। Right, तो right. देयर इज वेयर आई गेस यू पीपल आर स्टार्टिंग डीप लर्निंग कोर्सेज। हाँ, तो वो हम लोगों ने वो- भी अभी डीप लर्निंग और एमएल और वो सब पढ़ाना इसलिए शुरू किया है बिकॉज अब वो अब वो इमिनेंट फ्यूचर है वो. अब वो लाइन खत्म हो रही है, हाँ, अ लाइन बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एमएल इंजीनियर, हाँ, वो लाइन that is फेड हो रही है that अब। is fading. That is fading. If you were preparing today for a software engineering role and you were just graduating out of college, let's say you were graduating in 2026, so what do you think? How would you be preparing? लाइक लीड कोड पे बहुत सारा कंटेंट आता है, कंटेंट रिलेटेड टू अभी कैसे वो पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओए में भी और इंटरव्यूज़ में भी। एंड आई सी दैट अब अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Right. Difficulty level तो बढ़ा ही है डिफिकल्टी पहले लेवल से. इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हाँ, आई नो कि कुछ अभी लीड कोड के कॉन्टेस्ट है जिसमें आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं उसको आउटलायर ले लेते हैं, बट ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है वो ये है कि हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरव्यू को भी आते हो, नॉट नेसेसरी, ठीक है। इंटरव्यूअर क्या देखता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो प्रॉब्लम को लेके, वो ये नहीं देख रहा कि हाउ यू आर सॉल्विंग दैट हार्ड प्रॉब्लम एंड टू एंड कम्प्लीटली। आपको कोई आप ऐसा तो नहीं कि आप असम्पशन खुद से ले लेते हो। Right. Are you asking questions? आर यू आस्किंग क्वेश्चंस, आर यू आस्किंग राइट क्वेश्चंस, ठीक है। आप कहीं पे अटकते हो तो फिर आप क्या, अगर आपको कोई हिंट मिलता है आप उस हिंट को लेके कैन यू Solve कर ट्रेवल, पाते हो कि नहीं? यस सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। सो अगर मैं प्रिपेयर कर रहा होता, सो मैं बहुत सारे मॉक्स देता पहले तो इन सब इंटर जितने भी ओ एज हैं। मतलब लीड कोड का जो जहाँ पे कंटेंट होता है ना बहुत सारा, मतलब जो लोगों ने डाला डिस्कशन सेक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो लोग अपडेट कर रहे हैं। मैं उसके थ्रू वापस से जाता, इवन कि अभी भी अगर मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है मान लो, आई विल गो थ्रू दी लीड कोड डिस्कशन सेक्शन। आई विल सी कि बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा, इन सब ने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, फ्रेम किए हैं, ठीक है। मैं उनकी एक रेपोजिटरी बनाता कि ओके दिस इज़ व्हाट दे आर आस्किंग वो फॉर, दिस इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल। उसको भी मतलब ब्रेक डाउन करता ऑन द पीसेस कि अच्छा दिस इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल नाउ डेज विच इज़
मतलब जो नॉर्मलाइज्ड है, एंड ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन कैसी है। फिर मैं बहुत सारे मॉक्स शेड्यूल करता। मॉक्स में मैं यही बोल देता कि ठीक है, लीड कोड का डिस्कशन सेक्शन में से ही कुछ 100 क्वेश्चंस ले आता और मैं बोलता इसमें से ही पूछ लो, ठीक है, अगर आपके अपने क्वेश्चन है तो पूछ लो, ये अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, जस्ट एसेस माय वे इन विच आई एम कम्युनिकेटिंग। तो पहली बात तो बहुत सारे मॉक्स मैं प्रिपेयर करता, मॉक्स इंटरव्यूज देता। सेकेंडली, मैं LLD, ये तो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब अब तो इम्पॉसिबल है कि मैं LLD के बिना इंटरव्यू को क्रैक कर दूँ। कॉन्करेंसी, हाई लेवल डिज़ाइन के भी अच्छे खासे मैं अपने पास नॉलेज रखता हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ इंडेक्सिंग, व्हाट इज़ शार्डिंग, व्हाट इज़ लाइक बहुत सारे कंसेप्ट हैं उसके, उसमें भी दैट हाउ SQS वर्क्स, हाउ रेडिस वर्क्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कैसे एंड रेडिस, ठीक है। ट्रेड ऑफ समझता पड़ता हर एक के ट्रेड ऑफ्स क्या है, लैम्डा यूज़ करने का ट्रेड ऑफ क्या है, कब कहाँ पे लैम्डा यूज़ होना है। सो रियल इंजीनियरिंग जो स्टफ़ है वो मैं अब अच्छे से पढ़ता अगर मैं स्टार्ट करता अब तो कोई भी फ्रेशर है जो स्टार्ट कर रहा है, दे हैव टू बी गॉन थ्रू दिस। अब प्लस वेयर टू यूज़ जेन ए आई, वेयर टू यूज़ जेन ए आई, ठीक है। तो इफ़ यू नो दैट विच प्रॉब्लम इज कैपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व थ्रू जेन ए आई, तो वहाँ पे ही मैं जेन ए आई लगाता। वो भी फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का ही आ जाता है कि ठीक है, मैंने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये LLM सॉल्व कर देगा, वही है। तो टूल है वो भी एक, जैसे हमारा बाइनरी सर्च एक टूल था, वो भी अभी एक टूल है जो कि बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। दिस इज दी ओनली सीन नाउ। अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे ही है, बस टूल ज़्यादा आ गए हैं, नए आ गए हैं, हमको टूल समझने हैं अच्छे से। I think it was amazing to have you. Our audience got to learn a lot. I believe that, and they'll also draw a lot of inspiration that someone like you who made a switch from TCS to Amazon and then to Nelson, prepared throughout, did a lot of continuous effort. Is there anything that you would want to say as a closing remark for this discussion to your juniors or to those who are graduating or to those who are in service based companies trying to prepare for product based companies? सो आई हैव लॉस्ट मैनी टाइम्स, आई हैव लॉस्ट इन मैनी इंटरव्यूज़। मतलब अभी तो मैं बता रहा हूँ जो मैंने क्रैक किए हैं, वो नहीं बता रहा वो जो मैंने क्रैक की नहीं किए हैं, जो नहीं हो पाए क्रैक। देर आर ऑल्सो सो मैनी इंटरव्यूज विच आई कुडंट हैव क्रैक्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम TCS, इवन इन कॉलेज ऑल्सो बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं किए। मतलब ऐसा भी होता था कि थर्ड और फोर्थ राउंड के बाद रह जाता था, ठीक है। सो और कईयों में ऐसा था कि OA भी दिया, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक्सेप्ट हो गया, बट आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। डोंट से दैट यू आर लूज़र, नो वन इज़ लूज़र, ठीक है। एवरी वन हैव देयर ओन टाइम। हाँ, बी कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग पाठशाला हेल्प्स इन लॉट्स ऑफ सेंस, and as Anup bhaiya have already said that, and he keeps on saying that success is a continuum and not an event. So thanks to bhaiya for giving me this platform to speak. And congratulate you for this Zenith School of AI. And yeah, and I recommend everyone to uh, ask bhaiya about the questions that what kind of courses are there for Zenith School of AI, and what is the curriculum overall. So at Zenith School of AI, what we are doing is कि पहले, like when you came to study in 2021 2022, we used to say कि 6 महीने पढ़ लो अच्छे से, अमेज़ॉन निकल जाएगा। और उस टाइम ऐसे होता भी था कि हर वीक अमेज़ॉन यूज टू टेक 10 रिज्यूमेज फ्रॉम अस सेइंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे दो, एंड दे यूज टू हायर 3 ऑफ देम। आई थिंक यू वर वन ऑफ देम इन वन ऑफ दोज वीक्स। तो अभी मैं लास्ट ईयर तक लोगों को ये बोलता था कि अगर तुम्हें हमारे यहाँ पढ़ना है तो तुम्हें करीब करीब 1.5 years पढ़ना होगा, बिकॉज अभी अगर पढ़ना है तो आपको DSA भी पढ़ना होगा, आपको फुल स्टैक पढ़ना होगा, आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपको लो लेवल डिज़ाइन आना चाहिए, आपको हाई लेवल डिज़ाइन आना चाहिए, आपको एजेंटिक AI आना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इफ समबडी स्टडीज़ वेल, इट्स अ 1.5 year जर्नी इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो अब मुझे ये लगता है कि एज टाइम इज़ गोइंग बाय, you would actually need to do proper 4 year studies to remain relevant, क्योंकि you would
you would need to know ML, you would need to know AI very very well, you would need to know about LLMs very very well to optimize, like we talked. You would need to know software engineering very very well. एक और जो aspect है वो with time ये भी build हो रहा है कि a lot of generalist knowledge will be required. Like if I am great at tech and if I learned marketing also, then I can probably solve for marketing and I am able to think in those contexts much better, right? तो हमने उसमें बहुत सारे बिजनेस के कोर्सेज भी डाले हैं. तो जो जेनेथ स्कूल ऑफ एआई का बीटेक है उसमें इन डेप्थ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन डेप्थ एआई, एलएलएम्स, मशीन लर्निंग और bits and pieces of management courses, bits and pieces of business side courses to give you a overall horizon जहाँ पे फिर आप सोच सकते हो कि what problems to solve, what to build. तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रहे हैं 4 साल के लिए. दैट्स ग्रेट. जो आप बात की है ना कि यू शुड नो अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, एंड आई थिंक दैट इज रियल बिकॉज इन दिस वर्ल्ड यू कैन बिल्ड सो फास्ट, बट आपको अगर बिजनेस पता है ना किसी चीज़ का. एग्जैक्टली अगर ये पता है कि बनाना क्या है, अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट आता है या फिर आपको बेसिकली यू हैव अ टेस्ट ऑफ व्हाट टू बिल्ड, तो बिल्डिंग इज सॉर्ट ऑफ कमोडिटाइज्ड टू एन एक्सटेंट. नॉट टू लाइक entirely commoditized, but to an extent it is commoditized. But having that sense along with a lot of knowledge in tech makes you very versatile. So that is what we are trying to build at Zenith School of AI. इससे तो आप सिर्फ जॉब नहीं, आप बिजनेस कर लोगे. बिजनेस बना लोगे. थैंक्स भैया. Thank you, Manav. Thank you for joining in. श्योर.